کو بتائیں سیلابی صورتحال اور خراب معاشی صورتحال سے ہر طرف مہنگائی کا راج ہے۔ چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کاروباری حضرات چکرا کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان کے بیشتر علاقے سیلاب کی زد میں ہیں، جبکہ باقی مہنگائی کی نظر ہو چکے ہیں۔ چھوٹے اور درمیانی طبقے کے کاروباری حضرات کی ہمت جواب دے گئی۔ ایمبرائڈری ایسوسی ایشن کے صدر کہتے ہیں انتہائی مہنگی بجلی، را مٹیریل کی عدم دستیابی اور بڑھتے پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ کاروبار کو لے ڈوبے ہیں۔ اس بند انڈسٹری کو چلانے کے لیے فوری طور پہ ان کو سبسڈی دیں بجلی کے ریٹس میں، گیس کے ریٹس میں، تاکہ جو لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں وہ اپنے گھروں کو آئیں۔ جو لوگ سیلاب سے تباہ ہو گئے ہیں وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن جو یہاں پہ ایک طوفان آ گیا بے روزگاری کا، اس کو کنٹرول کریں۔ رانا عبدالغفور نے کہا حکومت نے کاروباری طبقے کے لیے سبسڈی پیکج کا اعلان نہ کیا تو انڈسٹری دیوالیہ ہو جائے گی۔ اس موقع پر مزدور بھی بے روزگاری کے خوف میں مبتلا ہیں۔ ہماری مجبوری ہے، ہمارے آنر افراد نے فیکٹریاں بند کر دی ہیں، مشینیں بند کر دی ہیں، کپڑا نہیں ہے۔ اگر کپڑا نہیں ہے تو اوپر سے بجلی اتنی مہنگی ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہے، ڈیزل اتنا مہنگا ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اوپر چلی گئی ہے۔ کاروباری حضرات کا ماننا ہے اگر حکومت اپنی سیاست امکانے میں مصروف رہی اور مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے تو دیگر انڈسٹری کی طرح ہماری انڈسٹری بھی بند ہو جائے گی۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ شہراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں ایل پی جی کی بڑھتی قیمتوں نے جہاں گھریلو صارفین کو بری طرح متاثر کیا، وہیں پکوان سینٹر بھی متاثر ہونے لگے۔ کمرشل سلنڈر 10,500 سے 11,000 جبکہ مختلف جگہوں پر 12,000 تک فروخت ہونے لگا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقدیر سے۔ جی بتائیے گا۔ بالکل، ایل پی جی کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں، جس کے باعث نہ صرف گھریلو صارفین شدید پریشان ہیں بلکہ جو کاروباری مراکز ہیں، جو پکوان سینٹرز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہوٹل مالکان ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس بڑھتی مہنگائی میں شدید متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کمرشل سلنڈر ایل پی جی کے حوالے سے بات کی جائے تو 10,000 سے 10,500 تک اس کا ریٹ پہنچ چکا ہے، جس کے باعث فی کلو کتنا ریٹ بڑھا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پکوان سینٹر کے مالکان۔ سر بتائیے گا کہ کتنا ریٹ بڑھا ہے فی کلو کے حساب سے، اور جو کمرشل سلنڈر ہے وہ کتنے میں پڑ رہا ہے آپ کو؟ السلام علیکم بھائی جان، یہ جو ہے ہمارا یہ کمرشل پہلے 5800 5500 کا اینڈ 6000 پہ چلا جاتا تھا، جب پیچ پہ چلا جاتا تھا۔ اب یہی سلنڈر ہمیں 10,000 بلکہ 15,000 کا ہم نے خریدا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جا کے جو ہے کچھ سٹیبل ہوا ہے، جو ہمیں اب بھی 12-13,000 روپے میں مل رہا ہے۔ تو اتنے حالات ٹف ہوئے پڑے ہیں کہ ہم اپنے کام کرنے سے مجبور ہوئے پڑے ہیں کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ بندہ اپنا کام کرنے سے بھی بہت مشکل اپنا کام کرنا ہو گیا ہمیں۔ کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے؟ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ برائے مہربانی اپنے یہ قیمتیں سٹیبل کرے، مقررہ کرے، تاکہ جو یہ مافیا ہے کنٹرول کرے اسے۔ ایل پی جی کی قیمتیں روز بروز بڑھ رہی ہیں، جس کے باعث پکوان سینٹر پر بھی جو ہے وہ برے اثرات پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایل پی جی کی قیمتوں کے باعث۔ اور اس حوالے سے جو شہری ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گھریلو سلنڈر کے دام بھی بڑھ چکے ہیں، جس کے باعث گھر کا چولہا جلانا بھی مشکل سے مشکل تر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے جو شہری ہیں، جو پکوان سینٹر کے اونر ہیں، ان کا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ جو ایل پی جی کی قیمتیں ہیں اس کو کمی کی جائے، تاکہ پکوان سینٹر سمیت جو کمرشل سلنڈر استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو گھریلو سلنڈر۔ بہت شکریہ عبدالقدیر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں توبہ ٹیکسنگ کی سبزی منڈی میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ ٹماٹر 110، ادرک 239، پیاز 71 اور ہری مرچ 280 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ توبہ ٹیکسنگ کی سبزی منڈی میں سبزیوں کی قیمتیں آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں پر منڈی کے آڑتیان کا کہنا ہے تمام سبزیاں بلوچستان سے آ رہی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے کرائے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، اس لیے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے۔ تمام تر جو آ رہی ہیں، ٹماٹر ہے، پیاز ہے، یہ ساری چیزیں، ہری مرچ بھی ہے، یہ ساری بلوچستان سے آ رہی ہیں۔ ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ فصلیں تباہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا نظام درم برم ہو گیا۔ یہاں پہ پہلے ٹرک جو آتے تھے بلوچستان سے، ان کا تقریباً 1 لاکھ کے قریب کرایہ ہوتا تھا پیاز کی گاڑی کا، اب 2 لاکھ سے اوپر ان کے کرائے ہو گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے سبزی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ حکومت کو مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ٹوبہ کی سبزی منڈی میں ٹماٹر 110، ادرک 239، پیاز 71، لہسن 127، ہری مرچ 280 اور لیمو 182 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی تو سبزیوں کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی۔ حکومت کو چاہیے عوام کو فوری ریلیف دے۔ کیمرہ مین اسامہ محمود کے ساتھ اسامہ یاسین، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ آپ کو بتائیں زرعی ملک میں کسان پریشان ہیں، بجلی بلوں سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ نہ نکل سکا، زراعت کے لیے ٹیوب ویل کا استعمال مشکل ہو گیا۔
ज़राई मुल्क में भी किसान परेशानी का शिकार हैं। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ना निकल सका। ज़राअत के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल मुश्किल हो गया। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन काश्तकारान राना मोहम्मद खान का कहना था, माजी में किसानों को रिलीफ नहीं दिया गया तो अब चीनी और आटा बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। बिलों से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ना निकलने से किसान गंदम की काश्त करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे, क्योंकि काश्त बहुत महंगी हो रही है। देखिए, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और जो किसानों की मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। किसानों से वादा किया गया था कि उनसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है ना वो बिल कम किए जाएंगे, लेकिन वो दोबारा उसमें लगा दिए गए हैं, बल्कि उस खाने को ख़त्म करके दीगर जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा दिया गया है। किसानों का मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से बढ़ता हुआ टैक्स ज़राअत के लिए ज़हर कातिल साबित हो रहा है। दरामद पर इतने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए जाते हैं मगर किसानों को फायदा नहीं दिया जाता। ये जो काम हो रहा है इसमें महकमा माल की भी बहुत ज़्यादा नाअहली है, तो गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये शफाफ तरीके से डिजिटल गिरदावरी भी हो। आगे गंदम की बिजाई का मौका है, अगर ये सूरत हाल रही तो हम पहले ही कपास जो है हमारे लिए नायाब हो चुकी है। अगर यही सूरत हाल रही, जो आटे में मुश्किलात हैं किसानों को, तो हम गंदम भी इंपोर्ट करने वाले बन जाएंगे। बिजली, खाद और सर्टिफाइड बीज महंगा होने की वजह से किसान मायूसी का शिकार हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं, शोबा तामीरात के हवाले से बुरी खबर सामने आई है। बारिशों की वजह से ईंटें और दीगर मटीरियल महंगा हो गया है। तामीरात के शोबे से वाबस्ता कारोबारी अफराद मुश्किलात का शिकार होने लगे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर बढ़ते हुए टैक्सेस के हवाले से, बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से, तो ये गरीब के लिए एक और बड़ी परेशानी खड़ी करने लगी है कि जिसमें आज अपना घर बनाना वो तकरीबन डबल रेट्स पर चला गया और उसका असर ये पड़ा है कि लोग अब जो कंस्ट्रक्शन है उसकी तरफ आने के लिए तैयार नहीं है और कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है वो बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। सरकार का यकीनन इससे टैक्स भी मुतासर होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ माहिर तामीरात और एक दोस्त मौजूद है, उनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे, जानेंगे। चौथा मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ा है शोबा तामीरात पर इन दिनों में, स्पेशली अगर 2-3 महीनों की बात करें, ये बारिशों की मानसून के हवाले से बात करें तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई। मैं चौधरी अब्दुल कुदूस बिलाल एसोसिएट के नाम से कंस्ट्रक्शन का कारोबार कर रहे हैं पिछले 27 साल से। ये बारिशों के हवाले से कंस्ट्रक्शन का जो पिछले 3 माह पहले जो इम्प्रूव होने लगा था वो बिल्कुल स्टक हो गया। और इसी तरह ही मैं अगर रेत की तरफ जाता हूँ तो रेत भी वो मादनियात का जो वजारत है उसने भी टैक्सेस बढ़ा दिए। क्रश की तरफ आता हूँ तो वो भी मादनियात का जो वजारत है उसने बढ़ा दिए। और बारिशों की वजह से ईंटों की हालत ये है कि जो 9500 रुपया हज़ार थी, आज 12,500 रुपया भी नहीं मिल रही हज़ार ईंट। और मैं चैलेंज करता हूँ अहकाम बाला को भी और अपने दोस्तों की कि आप शहर विजिट करके देखें, आपको कहीं गरीब आदमी के लिए कंस्ट्रक्शन करना नामुमकिन हो गया। गरीब आदमी किसको कहता हूँ कि 87% जो हमारे पाकिस्तान में गरीब है। और आप मोहल्लों में, गलियों में चल फिर के देख लें, कहीं आपको कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आएगी। हाँ, कोई प्लाजा बनता हुआ, कोई 6 कनाल का घर बनता हुआ शायद आपको नज़र आए, बाकी कोई नहीं है। तो मेरी गुजारिश है अहकाम बाला पे कि प्लीज़ ज़रा तवज्जो दें और हुक्मरान तवज्जो दें। गरीब आदमी के लिए अपनी छत बनाना भी नामुमकिन हो गया। जिस हवाले से तामीरात के शोबा से वाबस्ता कारोबारी अफराद के मुताबिक अभी यहाँ पर सूरत हाल ये बनी हुई है कि सिर्फ कोई कमर्शियल जो यहाँ पर जगह वो तो बन, तो आम लोग अपनी छत बनाते थे, घर बनाते थे, उसका सिलसिला। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फैसलाबाद में सूतर मंडी के तासरों ने हुकूमत से रुई की एक्सपोर्ट पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया है। तासरों का कहना है कि अगर रुई की एक्सपोर्ट ना की गई तो धागे का रेट आने वाले दिनों में बेकाबू हो जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। जी बताइएगा शराज। फैसलाबाद खास तौर पर सूतर मंडी के हवाले से बात की जाए तो ये रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, ये इतलात सामने आ रहे हैं कि मुल्की सतह के ऊपर, शहरी सतह के ऊपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर धागे की खपत जो है वो बढ़ती चली जा रही है और उसकी मांग भी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन उसके बावजूद धागे की एक्सपोर्ट जारी है, धागे की शॉर्टेज का भी सामना है। तो इस वक्त एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ से, फैसलाबाद पाकिस्तान यार्ड मर्चेंट्स एसोसिएशन की तरफ से ये मुतालबा सामने आया है कि धागे की एक्सपोर्ट को फौरी तौर पर रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तान से अभी भी धागे की एक्सपोर्ट जारी है। ताहम इस वक्त सूतर मंडी के ताजरों की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि धागे की एक्सपोर्ट को बैन किया जाए।
कम से कम 6 महीने के लिए धागे के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया जाए ताकि मुल्की सतह के ऊपर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर धागे की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। बसूरत दीगर ये होगा कि धागा सस्ता जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद महंगा धागा जो दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस वक्त हुकूमत से फैसलाबाद के ताजरों की जानिब से ख़ास तौर पर पाकिस्तान यार्ड मर्चेंट्स एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत से अपील की जा रही है कि धागे की एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया जाए ताकि लोकल सतह के ऊपर धागे की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इसी हवाले से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जानिब से ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर धागे की बदकिल्लत का हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं छुट्टी के रोज भी फैसलाबादियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। कचहरी बाजार, पहाड़ी ग्राउंड, मिल्लत रोड, निशाताबाद और सिविल लाइन में गैर कानूनी बाजारों का लगना मामूल बन गया। फैसलाबाद में इतवार का रोज भी शहरियों के लिए खारी का रोज बनने लगा। छुट्टी के रोज शहर भर में गैर कानूनी इतवार बाजार लगना मामूल बन गया, जिसके बायस सड़कों से गुजरना किसी अजाब से कम नहीं होता। कचहरी बाजार हो या राजबा रोड, बात हो निशाताबाद की या मिल्लत रोड की, हर जगह इतवार को गैर कानूनी इतवार बाजार लगा दिए जाते हैं। शहरी कहते हैं सड़कों पर इतवार बाजार नहीं लगने चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल बहुत तंगी होती है ये आते जाते लोगों को, इसके लिए मुनासिब जगह होनी चाहिए। ये बस ऐसी तंगी होती है रोड को ऐसे मोटरसाइकिल खड़ी करने में। दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कारपोरेशन हुकाम सारी सूरत हाल पर चुप साधे नजर आते हैं। गैर कानूनी इतवार बाजार में ठेला लगाने वाले शख्स का बरमला कहना था, हम क्या करें, कहाँ जाएं, रोड पर बैठे हैं तो क्या होगा। इतने केड़ा काम सही कर रहे हो, जिदा माड़ा जी ने भी चल रहे हो, अपनी मनमर्जी कर रहे, इतने माड़े दे बेड़ा गर्क हो रहे हो। मुनासिब जगह सारी मुनासिब या रोड कितने है। गैर कानूनी इतवार बाजार शहरियों के लिए सफरी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फैसलाबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन की कारकर्दगी पर सवारियां निशान भी हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं फेस्को ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन ट्रेनिंग के लिए SSO सेकंड के मुलाजमीन को नामजद कर लिया है। फेस्को का SSO सेकंड को SSO फर्स्ट और SSA को SSO सेकंड में तरक्की देने के लिए ट्रेनिंग का आगाज 26 सितंबर से होगा। डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग 40 दिन तक जारी रहेगी। आपको बता रहे हैं फेस्को ने डिपार्टमेंटल प्रमोशन ट्रेनिंग के लिए SSO सेकंड के मुलाजमीन को नामजद कर लिया है। आपको बताएं झंग पीपल्स पार्टी की जानिब से तनवीर मोहल की ज़ेर सदारत जिले सेक्रेटरीट में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में सैलाब की तबाहकारियों पर गुफ्तगू की गई। मीटिंग के शुरुखा की जानिब से बिलावल भुट्टो के UNO के दौरे को सराहा गया है। इसी पर बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी बताइएगा वसीम। जी बिल्कुल, इस टाइम बिलावल भुट्टो का कामयाब दौरा UNO का चल रहा है, जिस पर पीपल्स पार्टी की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान गुज़श्ता दौर में जो है तन्हाई का शिकार हो गया था। इस टाइम पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है ये दावा किया जा रहा है कि UNO में तमाम तर ममालिक जो है पाकिस्तान की बात सुन रहे हैं। हमारे साथ जो है ज़िले सदर तनवीर मोहल साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बिलावल भुट्टो का कामयाब दौरा चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी, पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म रही हैं, उस वक्त भी दुनिया को अपने मसाइल को बताया और दुनिया ने हमारे हर मसले का हल के लिए हमारी मदद की। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने माँ के वो विरसे को आगे बढ़ाते हुए दुनिया में गए हैं UNO में। वहाँ पे उन्होंने जो नौजवान वज़राए ख़ारजा उसकी कॉन्फ्रेंस की, उसकी भी सरबराही की है। वहाँ पे लोगों को बताया जाके कि हमारा मुल्क में सैलाब के हालात की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब है और दुनिया ने बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ को समझा है और उस पर मुख्तलिफ जगह पे जाके उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद किया और पाकिस्तान की मदद के लिए तमाम ममालिक इकट्ठे होकर उस पर इकट्ठे खड़े हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बिलावल भुट्टो की जो है आवाज़ थी पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर सैलाब मुतासरीन के लिए। जो बहुत शुक्रिया वसीम अजीज हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तलाल चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालते निकालते पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा हुआ है। 250 का है, 32-35 का आटा गरीब आदमी का आज 120 रुपए का है। 52 रुपए की चीनी आज
130 रुपए की है, 140 रुपए का घी आज 540 रुपए का है। अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से गरीब की रोटी भी जाती रही। पेट्रोल महंगा करने की बात हो या बात हो बिजली और गैस के कीमत बढ़ाने की, नून लीग के लिए एक आसान रास्ता था कि वो पाकिस्तान को तनहा छोड़ते, श्रीलंका बनते हुए देखते और छोड़ के वो इलेक्शंस में चले जाते और उसी तरह की शोबदाबाजी करते जैसे इमरान खान ने जाते जाते की है। वो 150 का तेल करके गए थे, हम 100 रुपए का करके घर चले जाते, पाकिस्तान श्रीलंका बनता रहता। दूसरा रास्ता मुश्किल रास्ता था, उस रास्ते पे पाकिस्तान अकेला खड़ा था। उस रास्ते का चुनाव नवाज शरीफ और उसकी अलाइज की हुकूमत ने किया कि पाकिस्तान को श्रीलंका नहीं बनने देना। आपको बताएं, साबिक MNA राना अफजल खान की तीसरी बरसी की मुनासबत से फैसलाबाद में दुआया तकरीब मुनक्कद हुई। मेरे तो सोने दियां अतावां जिन्हों खैर पावे सोना ओ ना कदी गरीब होवे, जिस वेले विच कबर दे सोना कदम टिकावे, कदमां च डे पवां ते मंजर अजीब होवे। साबिक MNA राना अफजल खान की तीसरी बरसी की मुनासबत से दुआए तकरीब का एहतमाम किया गया। कुरान ख्वानी और दुआए तकरीब में साबिक MNA नजमा अफजल, साबिक MP खालदा मंसूर और दीगर सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। खवातीन की बड़ी तादाद ने दुआए तकरीब में शिरकत की। राना मोहम्मद अफजल खान की तीसरी बरसी है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया था। हम लोग पहले बाहर रहते थे सऊदी अरब में, हम वापस आए सिर्फ इसलिए कि वो अपने वतन की खिदमत करना चाहते थे, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाह रहे थे। दुआए तकरीब में राना अफजल के साले सवाब के लिए दुआएं की गईं। साबिक MP नजमा अफजल का कहना था कि राना अफजल ने अपने इलाके के लिए भरपूर काम किया और हमेशा लोगों की मदद के लिए पेश रहे। राना अफजल इखलाक के बहुत अच्छे इंसान थे और इनकी यादें आज भी ताज़ा हैं। मैं समझती हूँ कि उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा और वो एक अच्छे बाप थे, अच्छे शौहर थे और अच्छे बेटे थे अपने वालिदैन के भी, और हर तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अल्लाह ताला उनको आला दर्जात अता फरमाए। नजमा अफजल का मजीद कहना था कि राना अफजल खान न सिर्फ एक अच्छे सियासतदान थे बल्कि एक बेहतरीन शौहर और बाप भी थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।